Hello bachcho, let's read this question. This question states which statements are correct. A molar volume of every gas at SATP it is 24.45 liter. B molar volume of every gas at STP it is 22.4 liters. And C all gases they have same kinetic energy at a given temperature, and D under critical conditions compressibility factor it is 3/8. So let's understand this question with the basic key concept. So the key concept states सबसे पहले हम conditions देखेंगे that what is molar volume. So firstly we need to understand कि molar volume क्या होता है. So molar volume होता है volume that is occupied by the gas which is 1 mole. मोलर की बात करिए तो 1 mole volume जो भी वो occupied करेगा that is the molar volume. So if we need to understand secondly about STP. STP is the standard temperature and pressure. This is the full form. So यहाँ पे conditions होती हैं. सबसे पहले यहाँ पे जो temperature होता है that is 0 degree centigrade और you can say 273 Kelvin क्योंकि हम इसको convert करेंगे 0 plus 273 so 273 Kelvin ही आएगा. यहाँ पे pressure या तो 1 atm होगा या 1 bar होगा और respectively आप ले सकते हैं. Secondly S8 third basically SATP होता है that is stands for standard ambient temperature and pressure. यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसको जब कन्वर्ट करोगे 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन. मोर प्रिसाइसली इसको आप 273.15 केल्विन लिख सकते हैं एंड मोर प्रिसाइसली 298.15 केल्विन लिख सकते हैं. सो यहाँ पे टेम्परेचर ये होता है, प्रेशर यहाँ पे 1 बार होता है और यू कैन से 10 to the power 5 पास्कल होता है. दिस इज द कंडीशंस फॉर SATP and STP. Now let's understand that what is the formula for the kinetic energy. So kinetic energy of any gas molecule, उसका फॉर्मूला होता है 3/2 RT. R is the universal gas constant. This is the formula for kinetic energy of gas molecules. Next is about, let's understand about compressibility factor. So as we know that ideal gas होती है जिसकी ideal gas equation होती है PV is equals to nRT. Ideal gas वो होती है जो ideal gas equation और ideal laws को follow करती है, but real gases follow नहीं कर पाती. So real gas don't follow ideal gas equation और वो ideal behavior show नहीं कर पाती, वो deviate करती हैं. So compressibility factor को हम Z से denote करते हैं. So compressibility factor एक deviation हमारे को बताता है कि कितनी रियल गैस डेविएट हुई है. सो डेविएशन बताता है ऑफ रियल गैस बेसिकली फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. सो Z का फॉर्मूला होता है PV/RT. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है दैट मोलर वॉल्यूम ऑफ एवरी गैस एट SATP it is 24.45 liters. So let's calculate it. So as we know that pressure का क्या फॉर्मूला होगा, pressure as we know that PV is equals to nRT. यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं nRT/P. So as we know कि टेम्परेचर का यहाँ पे जो भी एक वैल्यू होती है at SATP that is 298.15 क्योंकि हमको पता है it is 25 डिग्री सेंटीग्रेड. प्रेशर की वैल्यू हमको पता है that is 1 bar. And we know the value of R that is 0.0821 atmospheric liter Kelvin inverse mole inverse. So यहाँ से हम वॉल्यूम निकालेंगे. N क्या दे रखा है हमको? We know that N is 1 mole. R is 0.0821. Temperature it is 298.15.
pressure it is 1 bar. So जो volume आती है यहाँ पे that is 24.78 liters. So as from this we can suggest कि first option is incorrect because it is 24.7 not 24.4 liters. So the first option is incorrect. Let's talk about second. Second state की molar volume of every gas at STP is 22.4 liters. Let's calculate it. So volume is equals to nRT by P. यहाँ पे टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 273.15 केल्विन. प्रेशर यहाँ पे भी सपोज हम बार में ले लेते हैं. आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम के इनवर्स मोल इनवर्स. सो वॉल्यूम यहाँ से क्या आएगा, एन की वैल्यू 1, आर 0.0821 एंड टेम्परेचर इट इज 273.15. प्रेशर 1 दे रखा है. इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 22.4 लीटर्स. हेंस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स टॉक अबाउट थर्ड. सो थर्ड कह रहा है कि सारे गैसेस के पास सेम काइनेटिक एनर्जी होती है एट गिवन टेम्परेचर. सो एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 RT. एज वी नो कि R क्या है, वो एक कांस्टेंट है. सो यहां से हम बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में लेंगे हम टेम्परेचर, नॉट इन सेल्सियस. सो उसके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा. सो काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, अगर टेम्परेचर सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी. Hence, this statement is also correct. So, B and C both are correct. Let's talk about fourth. So, under critical conditions, compressibility factor is 3/8. So, what do you understand by critical conditions? So, a major factor critical condition में ये होता है कि जो लिक्विफिकेशन के टाइम पे जो डेंसिटी होती है गैस और लिक्विड स्टेट की, वो इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से लिक्विफिकेशन नहीं हो पाती और वो गैसियस स्टेट में ही रह जाता है. दैट इज अ क्रिटिकल कंडीशन, जब इन दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाए. सो क्रिटिकल कंडीशंस में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं. एज वी नो दैट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम उसको क्रिटिकल कंडीशन में चेंज करेंगे. सो इट विल बी पीसी, वीसी, आरसी एंड टीसी. सो देयर आर डिफरेंट वैल्यूज. पीसी की वैल्यू एट क्रिटिकल कंडीशन होती है A बाय 27B स्क्वायर. VC की वैल्यू होती है 3B. वी नो दैट वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A बाय V स्क्वायर V माइनस B बाय RT इज इक्वल्स टू RT. यहाँ पे जो A होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिनोट करता है एंड B बेसिकली इफेक्टिव साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को डिनोट करता है. सो दे बोथ आर वैन डर वाल कांस्टेंट. हमको पता है PC की वैल्यू A बाय 27B स्क्वायर है, VC 3B है एंड TC की वैल्यू है 8A बाय 27 RB. सो अगर हम Z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सो A बाय 27B स्क्वायर इंटू 3B डिवाइड बाय R इंटू 8A 27 RB. R यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा. जब ये ऊपर जाएगा सो वैल्यू क्या आएगी, A इंटू 3B अपॉन 27B स्क्वायर. जब ऊपर जाएगा 27B बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 8A. सो A से A कट गया, B से एक B से एक B कट गया और ये दूसरा जो B बचा उससे B काट दिया, 27 से 27 बच गया. ओवरऑल क्या बचा 3/8. So the compressibility factor at critical condition is 3/8. So D is also correct. So we have to go for the statement which are correct, and the final answer to this question is option number B, option number C and option number D. I hope you understood it well. Best of luck.